نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج 22 اپریل 2023 بروز سنیچر شہر کرنول کے کنارے ایک میدان میں ہم لوگ آج عید الفطر ادا کرتے ہوئے اس میدان میں جمع ہیں. ہم اس بات کے لیے سب سے پہلے اللہ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس رب العزت نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے عبادات، تلاوت، زکوٰۃ، قیام اللیل، دعائیں اور فطرے اور اسی طرح اعتکاف، عمرے، ان عبادتوں کو بجا لانے کی ہم میں سے بعض عبادتوں کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمایا. اللہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، قیام کو، سیام کو، صدقات و زکوٰۃ کو، خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس موقع پر میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی ضلع بلہاری کرناٹک آپ کے سامنے خطبہ عید الفطر پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید سورہ اعلیٰ 14، 15، 16، 17 ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد افلح من تزکا. تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کے ذکر کو بلند کیا اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی. فصلی اور نماز ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں انسان کے لیے پاکی کا سبب، اس کی حمد و ثنا بڑائی بیان کرنے کا وجہ اور عبادات بجا لانے کا ذکر اللہ کرتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ کے تقوی سے، اللہ رب العالمین کی خشیت سے اپنے دل کو پاک کیے، اپنے دل کو، اپنے زندگی کو گناہوں سے بری کیے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ ماہ شہر رمضان میں، رمضان کے ماہ میں جو روزوں جیسی فرض عبادت اللہ نے ہم کو دیا تھا، یہ عبادت فرض عبادت تھی. جیسے اسلام کے 5 ارکان نماز پڑھنا ہے،
माह रमजान के फर्ज रोजे रखना ये इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। अगर किसी के रोजे छूट चुके हैं उसे बाद के दिनों में पूरा करना लाजिम जरूरी है, फर्ज है उसके ऊपर। रोजों का तर्क करने वाला कुफ्र का इर्तिकाब करने के बराबर है जैसे नमाज का तर्क करने वाला कुफ्र का इर्तिकाब करता है। ज़कात का इनकार करने वाला कुफ्र का इर्तिकाब करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, माह रमजान किस लिए आया था? रोजे क्यों अल्लाह ने फर्ज किया था? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमने रोजे वैसे फर्ज किए थे तुम पर जैसे पहले वालों पर फर्ज किए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब हमको देखना यह है, क्या हम मुत्तकी बने हैं? क्या हमारे दिलों में तक़वा आ गया है? क्या हमारे दिलों में अल्लाह का डर खौफ आया है? अगर हमने अपने दिलों में अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया है तो यह माह रमजान के रोजे हमारे लिए कारआमद हैं। हमारे रोजों को अल्लाह ने कबूल किया है। अल्लाह ताला के बारगाह में हमारे रोजे कबूल हुए हैं, ये उसकी अलामत है अगर हम मुत्तकी बने हैं। हम रोजा रखने के बावजूद, रोजों की इबादत बजा लाने के बावजूद वही बदकार, वही सियाहकार, वही हराम कमाने वाले, वही गुनाह कबीरा करने वाले हैं, तो हमारे रोजे किसी काम के नहीं। रोजा रखने के बाद इंसान मुत्तकी बनता है, नमाजों के अदा करने के बाद इंसान के दिल में तक़वा आता है। अगर किसी के दिल में तक़वा रत्ती बराबर नहीं जागा है, उसकी रमजान की कोई इबादत उसके लिए कारआमद नहीं है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज ईद का दिन है। यह ईद के दिन यौम जज़ा यानी बदले का दिन है। अल्लाह ताला यहां मैदान में किस लिए बुलाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह अपने फरिश्तों में पूछता है, मेरे फरिश्तों, जब कोई बंदे मेहनत करते हैं तो क्या उनका सिला मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? या अल्लाह मिलना चाहिए। तो मेरे बंदों ने 1 महीने तक इबादतें की, 1 महीने तक उन्होंने रोजे रखे, क़ियामुल लैल किया, तरावी और ज़कात खैरात, उनका क्या सिला मिलना चाहिए? या अल्लाह तू बेहतर जानता है। अल्लाह कहता है, तुम गवाह रहना, इन मैदान में जमा हुए मेरे बंदों और बंदियों पर मैंने जन्नत वाजिब कर दिया, जहन्नम हराम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते हैं वो जन्नत की वाजिबियत और जहन्नम के हराम होने का सबब अल्लाह हम सब खुश नसीबों को नसीब फरमाए। हम मैदान में जमा हुए भाइयों बहनों को अल्लाह नसीब फरमाए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद से हुक्म देते हैं कि तुम अपनी खवातीन को ईदगाह जरूर लेकर आओ। अगर तुम में से कोई बहन नापाक भी रहे तब भी उसे ईदगाह लेकर आओ। अगर किसी बहन के पास ओढ़ने के लिए दुपट्टा चादर ना हो, पड़ोस की बहन अपने दुपट्टे में उसका सर छुपाकर उसे ईदगाह लेकर आए। नापाक खवातीन नमाज में शामिल ना हो लेकिन मोमिनों की दुआओं में जरूर शामिल रहे। क्यों? इसलिए कि वो भी रोजा रखी है, वो भी इबादतें की है, वो भी तिलावत की है। इस मैदान में जमा होने वालों के लिए जो बदला, जो जन्नत का सिला, जो जहन्नम के हराम होने का सिला मेरा रब दे रहा है, इस नेक सिले में वो खवातीन भी जमा हो जाएं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन हुक्म दिया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ईद किसकी है? एक अरबी शायर कहने वाला क्या ही बेहतरीन कहता है, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद वलाकिन्नल ईद लिमन खाफल वईद। ईद उसकी नहीं है जो नया कपड़ा पहन लिया, इतर लगा लिया, बन संवर के आ गया, बल्कि ईद उसकी है जो अल्लाह से डर गया, जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ जाग गया। मेरे भाइयों, हमको देखना यह है, हम रमजान में क़ियामुल लैल तरावियों की पाबंदी करने वाले, रमजान के बाद क्या फर्ज नमाजों की पाबंदी हमसे हो पाएगी नहीं पाएगी? क्या हम नमाजी बने हैं या बेनमाजी हैं? अगर नमाजी बने हैं तो माह रमजान के ये रोजे अल्लाह ताला के दरबार में हमारे शर्फ कबूलियत है। अल्लाह ने हमको मुत्तकी बनाने का मौका दिया था, हम मुत्तकी बने हैं। माह रमजान गुजरने के बाद ये रमजान क्यों आता है? अस्सौम जुन्नतुन, नबी ने बयान फरमाया, ये रोजा ढाल है। किससे? गुनाहों से, शहवत की चीजों से,
कबीरा गुनाहों से, बुराई बयान करने से, झूठ बोलने से, गीबत करने से, चाड़ी चुगली करने से, गाने गाने से, गालियां देने से, ये तमाम बुराइयों से ढाल है रोजा। रोजे का महीना गुजरने के बाद शैतान रिलीज हो चुका है। बेड़ियों से जो जकड़ा रखा था अल्लाह ने, शैतानों को छोड़ दिया है। क्या हमारी जबानों पर सच्चाई आ गई है या हम पहले के जैसे झूठे हैं? मेरे भाइयों, हमको चाहिए कि हम अपनी जबान को वैसे ही पाक रखें जैसे माह रमजान में बुराई ना बयान करते हुए, गीबत गिल्ले गाने ना गाते हुए अपनी जबान की हिफाजत किए, वैसी जबान की हिफाजत की जरूरत है आज हमको। साल के 12 महीने हमको यह देखना है कि हमने इस माह रमजान में जिस तरह अपनी निगाहों को फहश चीजों से, फिल्मों से, सीरियल से, नाच गानों से, ऐसे वैसे लहव लईब से बचा के टीवी चैनलों को, गंदे चैनलों को, नाच गाने के चैनलों को, फिल्मी चैनलों को हमने रोक के रखा था, क्या हमारे दिलों में वही ईमान है या बदल गया है? अगर वो ईमान है तो मेरे भाइयों हम मुत्तकी हैं। किसी ने पूछा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि तक़वा किसे कहते हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, तुम कभी किसी कांटेदार दरख्त के पास से गुजरे हो? हाँ गुजरे हैं। कोई आदमी कैसे जाता है कांटेदार रास्तों से? तो वो कहने वाले कहते हैं कि अपने दामन को, अपने कपड़ों को समेटते हुए बचा बचा कर, कांटों से अपने दामन को बचा बचा कर वो कांटेदार रास्ते से जाता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं इसी को तक़वा कहते हैं। दुनिया में बुराइयां आएंगी, जिना आएगा, शराब आएगा, हरामकारियां आएंगी, इन गुनाहों से अपने दामन को बचाते बचाते आखिरत की जानिब सफर करने का नाम तक़वा है। तक़वा है। ये तक़वा आज हमको अपने दिल में, अपने जिंदगी में जगाने, कायम रखने की जरूरत है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आज ईद उल फितर का दिन है। हमने माह रमजान में जैसे सिलारहमी किया, अपने रिश्तेदारों को, गरीब रिश्तेदारों को ज़कात दिया, रिश्तेदारों के साथ इफ्तारी सहरी में उनको दावत दिए, अपने घर बुला के सहरी कराई, इफ्तारी कराए, उल्फत मोहब्बत रखे। ये उल्फत मोहब्बत, ये सिलारहमी, ये रिश्तेदारी को जोड़ना, भाईचारगी जोड़ना, ये साल के 12 महीने हमारी जिंदगी में बाकी रहना चाहिए। मेरे भाइयों, खते ताल्लुक करने वाला, एक दूसरे से कटने वाला, एक दूसरे से नफरत करने वाला, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं किसी मोमिन के लिए जायज नहीं। ला यहिल्लु लिरजुलिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासी लयाल, किसी मोमिन के लिए यह जायज नहीं कि वो 3 रातों से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा अपने मोमिन भाई से बातें तर्क करे। अल्लाह के नबी कहते हैं 3 किस्म के आदमियों की कोई नमाज, कोई रोजा, कोई इबादत उसके आसमान में जाना तो दूर की बात, उसके सर के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं जाएगी। उनमें का एक अपने भाई से बातें तर्क करने वाला, खते ताल्लुक करने वाला। आज ईदगाह में हम लोग मुआनखा तो करते हैं, मुसाफा तो करते हैं, गले गले तो मिलते हैं, सिर्फ दिखावा है, ऊपर से मिलते हैं, अंदर से हमारे दिल में कीना कपट भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे ऊपर से तुम एक दूसरे के गले लगाकर मोहब्बत का इजहार करते हो, अल्लाह के वास्ते अपने दिल से अपने मोमिन भाइयों के लिए खुलूस रखा करो। कीना कपट, बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी, अदावत को खत्म करो। जैसे जाहिरी तौर पर मिलते हो, बातिनी तौर पर भी अपने दिल में मोमिनों के लिए उल्फत और मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक की यगानगत अपने सीने में जगाया करो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं यल्तक़ियान फयुअरज़ु हाज़ा व खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम। जब 2 नाराज मुसलमान आपस में मिलते हैं, अल्लाह की निगाह में उन 2 मुसलमानों में बेहतरीन मुसलमान अल्लाह की निगाह में वो है जो सलाम करने में आगे बढ़ता है, सलाम करने में पहल करता है। आज होता यह है, इन्हें मुझे बात नहीं कर रहा, मैं कहीं किसे बात करना, इन्हें मुझे सलामा नहीं करता, मैं कहीं किसे करना। अरे उन्हें नहीं कराया नहीं कराया भाई, तुम्हें करो ना, तुम्हें सलाम करो ना, क्या बिगड़ने वाला। अल्लाह के नबी कहते हैं हर पीर जुमेरात को बंदों के नामे अमाल अल्लाह के दरबार में पहुंचाए जाते। अल्लाह हर एक की मगफिरत करता है, उन 2 भाइयों की मगफिरत नहीं करता जो आपस में कीना कपट से बातें तर्क करके रखे। अल्लाह के नबी कहते हैं इनको मौका दो ताकि ये अपने आपस में सुलह करें। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहु बैना अख्वैकुम, हम मोमिन हैं, एक दूसरे के भाई हैं, हमको सिला रहमी के साथ रहना चाहिए, उल्फत और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं
ईद उल फितर आज हम अदा करने जो आए हैं, हमारे दिलों में गरीबों की मदद करने, मुसलमानों के साथ देने, मुसलमानों के साथ हमदर्दी करने का ज्यादा जज्बा होना चाहिए। हमने रमजान में माशाअल्लाह बहुत ज़कात दिया, खैरात दिया, गरीबों को चंदा दिया, मोहताजों को हमने दिया। क्या साल के 1 महीना दिए फिर 11 महीने बिल्कुल कंजूसा होकर जेब को रोक कर, अपने हाथ को रोक कर बैठोगे? नहीं। मुसलमान भाइयों के लिए, मजबूरों के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, मोहताजों के लिए अपने हाथ को फयाजी की शक्ल में, सखावत की शक्ल में हमेशा जारी और सारी रखिए। जब तक आप अपने भाई की मदद करेंगे, मेरा रब आप अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। वल्लाहु फी औनी अल अब्दी मा काना अल अब्दु फी औनी अखीह। बंदे की मदद अल्लाह उस वक्त तक करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। नबी ने बुखारी मुस्लिम में फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। एक मुसलमान अपने मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म न करे, उसे किसी मजलूम के हवाले न छोड़े, उसे बगैर मदद हो या बगैर उसके मदद के किसी मजलूम जालिम के हवाले ना छोड़े, बल्कि मन कान फी हाजत अखीह कान अल्लाहु फी हाजतिही व मन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतुन फर्रज अल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतुन मिन कुर्बी यौमिल क़ियामा। अगर दुनिया में तुम किसी मुसलमान की जरूरत को पूरा करोगे, उसकी मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी गैबी मदद करेगा। दुनिया के मुश्किलों में एक मुश्किल अल्लाह आसान करेगा, आखिरत की मुश्किलों में तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा। हमारी कितनी ऐसी मजबूर बेवा बहनें हैं जिनके शौहर शादी करने के बाद छोड़कर चले गए, वो औरतें अपने बच्चों को लेकर जिंदगी गुजार रही हैं। हम किसी बेवा से शादी करने को सवाब समझते हैं। ऐसी बहन जिसका शौहर छोड़कर चला गया, तलाक देकर चला गया, या उस बहन ने मजबूरी से खुला ले लिया, उन मासूम बच्चों की किफालत कौन संभालेगा? ऐसी बहन की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे बहनों की, ऐसे बच्चों की हम किफालत करें, उनकी मदद करें। मेरे भाइयों, उनका हम ख्याल करें। अपने अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में जो ऐसे मजबूर हैं, अगर कोई ऐसी बहन है, निकाह का पैगाम दे या कम से कम बच्चों के पढ़ाई का इंतजाम संभाले। वो बहन कहां जाएगी भीख मांगने के लिए? किसके दर पर जाएगी काम करने के लिए? वो हमारी बहन है। घर बैठकर गैरत के साथ कोई काम तो कर लेगी, लेकिन उसकी जिंदगी का सहारा कौन बनेगा? हर किसी मुसलमान की मदद कीजिए। ऐसे बेवा यतीमों के, मोहताजों, मिस्किनों की मदद कीजिए। जब तक ऐसे गरीबों की मदद करोगे, इनकी दुआएं लगेंगी, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, मन साम रमजान सुम्मत बाहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर। जिसने माह रमजान के रोजे रखे, चाहे 30 रोजे अल्लाह ताला नसीब से दिया तो 30 रोजे रखेंगे, अल्लाह ने नसीब से 29 रोजे दिया तो 29 रोजे रखेंगे। 29 या 30 रोजे रखने के बाद शव्वाल के 6 रोजे जिसने रख लिया, अल्लाह ताला उसे साल भर रोजे रखने का सवाब देगा। मन जाआ बिल हसनति फलहु अशरि अमसालिहा। जो एक नेकी करेगा, अल्लाह उसका 10 गुना बदला देगा। 30 रोजों का बदला 300 दिनों से, 6 रोजों का बदला 60 दिनों से, 360 दिन मतलब साल भर रोजे रखने का सवाब देगा। शव्वाल के, रमजान के 29 रोजे हुई बोल के शव्वाल के 7 रोजे रखने की आपको जरूरत नहीं। चाहे 29 हो या 30 हो, शव्वाल के 6 ही रखेंगे। नबी की हदीस 6 ही रखेंगे, 7 नहीं रखेंगे। ये 6 रोजे ईद के दूसरे दिन से भी रख सकते हैं। ईद के दिन रोजा रखना जायज नहीं है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा के दिन रोजा रखना जायज नहीं है। अय्याम तशरीक में भी 11, 12, 13 जिलहिज्जा को रोजा रखना भी जायज नहीं है। बाकी के दिनों में आप कभी भी रोजा रख सकते हैं। ये 6 रोजे पय दर पय भी रख सकते हैं, गैप कर करके भी रख सकते हैं। साल के 11 महीने में कभी भी रख सकते हैं। आप अपनी सहूलत से रोजे रख सकते हैं। रमजान में जो छूटे हुए बहनों के रोजे हैं हैज की वजह से, वो रोजे पहले रखो, बाद में शव्वाल के रखना क्या? ऐसा नहीं है। शव्वाल के रोजे शव्वाल ही में रखेंगे, छूटे हुए रोजे साल के 11 महीने में कभी भी रखेंगे। शव्वाल के रोजे सिर्फ शव्वाल ही के महीने में रखेंगे। शव्वाल के महीने में गैप कर करके भी रख सकते हैं, आखिर में भी रख सकते हैं, शव्वाल के शुरू में भी, दरमियान में भी, जैसा भी रखे। बहरहाल शव्वाल के रोजे शव्वाल में रखेंगे। छूटे हुए रोजे चाहे आप पहले रखकर बाद में रखें, या छूटे हुए रोजे शव्वाल के बाद भी आप पूरे कर सकते हैं।
लेकिन शव्वाल के रोजे शव्वाल ही में पूरे करेंगे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमको यहां पर जमा किए हैं तो हमारे दरमियान एक दूसरे के लिए उखुवत व भाईचारगी का मादा होना चाहिए, अल्लाह का डर अपने दिल में जगाना चाहिए। अगर कोई आदमी गुनाहों में मुलविस है, हमें चाहिए हम उसे इस्लाह करें, अदब से अखलाक से उसके ऐबों को जाहिर ना करें, उसकी बुराई बयान करते ना फिरें, बल्कि उसकी तन्हाई में इस्लाह करें। तक़वे का मतलब क्या है मेरे दीन और इस्लामी भाइयों? अगर कोई आदमी इस नीयत से गुनाह नहीं करता कि लोग मुझे देख लेंगे, मैं लोगों में जलील हो जाऊंगा, इसे तक़वा नहीं कहते, इसे एहतियात पोशी कहते हैं। बल्कि कोई आदमी गुनाह इसलिए छोड़ता है, मेरे अल्लाह ने यह काम करने से मुझे मना किया, अगर मैं ये बुराई करूंगा मेरा अल्लाह इसके बदले में मुझ पर गजब नाजिल करेगा या जहन्नम में डालकर अजाब देगा, इस नीयत से बुराई छोड़ता है तो वही उसी को तक़वा कहते हैं, उसी को तक़वा कहते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं बहुत सारे लोग क़यामत के दिन ऐसे आएंगे जो तिहामा पहाड़ जैसे नेकियां उनकी होंगी, लेकिन दिन के उजाले में नेकियां करने वाले, रात के अंधेरे में बुराई करने वाले, अल्लाह इनकी नेकियों को तराजू में रखने से पहले खसो खाशाक की तरह धूल जैसे उड़ाया जाता है, इनकी नेकियों को बिखेर के रख देगा। फयजअलुहुल्लाहु हब्बाअम मंसूरा, अल्लाह फिजा में बिखेर के रख देगा। अल्लाह के नबी कौन है ये लोग? दिन के उजाले में नेकियां करने वाले, रात के अंधेरे में बुराई करने वाले। अभी देखिए डिश केबल एक महीने के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है हमारे घरों में। हमारी माई बहनें जैसे ही ईद की नमाज पढ़कर शीर खुरमा पिए, केबल वाले को फोन करती हैं, कहाँ मरे बातू, अरे जल्दी, कहीं का माँ वो लगा केबल लगा, कहीं को माँ अरे लगा, पहले रमजान गुजरा लगा, शैतान रिलीज हुआ नहीं, अब 1 महीने के सीरियल देखना हमारा अम्मा, किसका जीना बिगड़िया कि, कौन शादी हो को बड़ा हो गया कि, किसके बच्चे हुए कि, किसका कोंपा हड़क गया कि, 1 महीने का पूरा बैकअप सीरियल देखना उन्हें। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम्हारा तक़वा क्या जी, ये ईमान क्या जी हमारा, ये डुप्लीकेट मुसलमान जी है रमजान का, 1 महीने का रेडीमेड ईमान जी है। अल्लाह के वास्ते ऐसे मुसलमान मत बनो मेरे भाइयों। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ मास, तुम यमन को जा रहे हो, वापस आने तक मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा पता नहीं, हो सकता है तुम यमन से लौटने के बाद मुझसे मुलाकात करो या मेरी खबर से आकर मुलाकात करो, मेरी खबर ही तुमको मिलेगी या मैं ही मिलूंगा। ये सुनकर हजरत माज रोने लगे। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, माज डरने की जरूरत नहीं, क़यामत के दिन मेरी उम्मतों में जो मुत्तकी परहेजगार लोग होंगे वो आकर मुझसे मुलाकात करेंगे, मुत्तकी परहेजगार लोग मेरे इर्द गिर्द खड़ेंगे, अल्लाह उनको मेरी शिफात हलाल करेगा, मेरी सिफारिश और शिफात अल्लाह हलाल करेगा। और मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई है जो फर्ज नमाज के बाद हम पढ़ते हैं, रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ऐ अल्लाह तू मेरे इस मामले में मदद फरमा, अइन्नी अला ज़िक्रिका, मैं हमेशा तेरा जिक्र बयान कर सकूं, तू इस मामले में मेरी मदद फरमा, व शुक्रिका, साल के 12 महीने तू बिरयानी खिलाया तो क्या, रोटी चटनी खिलाया तो क्या, अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा कर सकूं, इस मामले में मेरी मदद फरमा, वो हुस्न इबादतिक, ऐ अल्लाह साल के 12 महीने तेरी इबादत कमा हक़्क़हू बजा ला सकूं, इस मामले में तू मेरी मदद फरमा। ये बेहतरीन दुआ है। अल्लाह के नबी कहते वो आदमी अल्लाह को ज्यादा पसंद है जो हमेशा नेकियां जारी और सारी रखता है। रमजान में तरावी पढ़ने वाले रमजान के महीने के बाद फर्ज नमाजों में भी नहीं नजर आते, ऐसे मत बनो, साल के 12 महीने मस्जिदों को आबाद रखकर फर्ज नमाजों की पाबंदी करने वाले बनो, साल के 12 महीने नमाजी बनो। अल्लाह के नबी कहते हैं उस आदमी का अमल अल्लाह को कबूल नहीं जो चंद दिनों के लिए किया छोड़ दिया, लेकिन उस आदमी का अमल अल्लाह को ज्यादा पसंद है जो हमेशा करता है। ये फर्ज इबादत जी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, फजर जोहर असर मगरिब इशा सुन्नत मुअक्किदा, ये फर्ज है हम पर, फर्ज है, सुन्नत मुअक्किदा पढ़ना जरूरी है। मेरे भाइयों, अगर ये फर्ज अदा नहीं करेंगे तो कौन से मुंह से मुसलमान होकर कयामत में जाएंगे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इसी तरह आज ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद हमारे नौजवान सीधा वो हजाम शॉप को जाकर
शेविंग शॉप को जाकर बोलती है मेरा पूरा कल्ला छिल डाल बा, पूरी दाढ़ी मुंडा डाल बा, और फिल्म देखने के वास्ते जाती। नया फिल्म रिलीज हुआ करते, ईद उल फितर के वास्ते रिलीज कराया करते। हमारे नौजवान फिल्म देखने गए। रमजान के महीने में रोजा रखकर बीड़ियां नहीं पीने वाले, रोजे की वजह से गुटखे नहीं खाने वाले, रोजे की वजह से तंबाकू नहीं छीने वाले, जैसे ही रमजान गुजरिया फिर से शुरू यावाटा मदलाटा, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। वो बीड़ियां, वो सिगरेट, वो तंबाकू। अरे तुम्हारा रोजा क्या हुआ जी? तुम्हारे दिल में तकवा नहीं जगा सका, तुमको एक बुराई से नहीं बचा सका। कौन से महीने के रोजे रखे? क्या तकवा आया जी तुम्हारे अंदर? अल्लाह के वास्ते बुराई से बचो, फिल्में ना देखा करो, अपने दाढ़ियों को ना मुंडाया करो। नौजवानों, ये ईमान है तुम्हारी, ये ईमान की अलामत है। नबियों का चेहरा है ये, सहाबा का चेहरा है ये। अपने चेहरों को ना मुंडाया करो, अपने चेहरे को ना मुंडाया करो, अपने चेहरों को नूरानी रखा करो, और नशा आवर चीजों से अपनी जिंदगी की हिफाजत करो। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को तरोताजा रखता है, उसकी जिंदगी खुशियों से आबाद करता है जो आदमी हदीस रसूल सुनने के बाद उस पर अमल करता है और उस हदीस को दूसरों तक पहुंचाने का सबब और जरिया बनता है। अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद और शाबाद रखता है। दाएं कान से सुने, बाएं कान से अगर आपने इन नेकियों को तर्क कर दिया, हदीस रसूल को अगर आपने छोड़ दिया, कसम मेरे अल्लाह की, एक दिन आएगा तुम लोग दुआएं भी करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, रमजान गुजरने के बाद कुरान को जुज़दानों में लपेट के मत रखो। कुरान एक महीने के लिए नहीं आया, सिर्फ रमजान में पढ़ने के लिए नहीं आया, साल के 12 महीने पढ़ने के लिए आया। जब भी कुरान पढ़ोगे तुम्हारे घरों से शैतान, सूरह बकरा जिस घर में पढ़ा जाएगा, सूरह आल इमरान पढ़ा जाएगा, शैतान उस घर से भाग जाएगा। कुरान की तिलावत हमेशा जारी और सारी रखो, कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। दुकानों में बैठे हो, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, बेकार बैठे हो, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह जहां तुम पढ़ोगे अपनी सकीनत उतारेगा, रहमत उतारेगा, बरकत उतारेगा। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वअल्लिफ बैन क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनिहिम वअंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुग़नी अलैका अल खैर व ला नकफ़ुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुद व इलैका नसअ व नहफ़िद नरजू रहमतक व नख़शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबकल जिद्द बिल कुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादि लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबअना व इलैकल मसीर। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना allज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم إن هذا المرض جند من جنودي تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم نے جان بوجھ کر بھی گناہ کیے ہیں, انجانے میں بھی گناہ ہوئے ہیں. ہمارے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو تو معاف فرما. بے شک تو رؤوف الرحیم ہے, بے شک تو غفور الرحیم ہے, ارحم الراحمین ہے, تو غفار ہے. اے اللہ تو بخشنے والا ہے, تو رحمان و کریم ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم تمام کے خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے کا بندوبست فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ محتاج اور ضرورت مند ہیں, مسکین ہیں, اللہ اے پروردگار ان کے ہر پریشانیوں کو دور فرما. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء. اے اللہ تو غنی ہے, ہم فقیر ہیں. اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ہم تیرے سامنے مسکین و محتاج بندے ہیں. آج ہم اپنے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ تو خود فرماتا ہے جب تو کوئی بندہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے خالی ہاتھ لوٹانے میں تجھے شرم آتی ہے. اللہ ہماری دامنوں کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ہماری مغفرتیں فرما دے. جنت واجب کر کے جہنم حرام کر دے. جنت میں جانے والے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. سال کے 12 مہینے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرما. شیطان کے فتنے سے بچا لے. اللہ شیطان ریلیز ہوا ہے, شیطان چھوٹ اے اللہ شیطان کو چھٹکارا ملا ہے. اے اللہ شیطان کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ترکی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. دنیا کے چپے چپے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. علماء حق کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو نوجوان بیٹیاں ہندو بن رہی ہیں اللہ ہمارے نوجوان لڑکیوں کو
को, लड़कों को ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी बेटियों को पर्दे की, शर्म हया की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमा, ज़बान पर सच्चाई नसीब फरमा, जिंदगी में अमानतदारी नसीब फरमा, वादे की पासदारी नसीब फरमा, मुनाफिकों की चाल से बचा ले मेरे मौला। ऐ अल्लाह कुफ्र ज़लालत से, गुमराही से बचा ले। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबिना अला दीनिका, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबिना अला ताअतिका। ऐ अल्लाह जो हज उम्रा करना चाहते हैं उनके नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, जिन जिन की जो जो हाजतें हैं, परेशानियां हैं, हमारा तो अकेला मुश्किल कुशा है। ऐ अल्लाह हम तेरे तौहीद परस्त बंदे हैं। ऐ अल्लाह हम अपने सर को तेरे सिवा कहीं नहीं झुकाते, हमारे हाथों को तेरे दरबार के अलावा कहीं नहीं उठाते। ऐ अल्लाह हम तौहीद परस्तों की तौहीद की लाज रख ले। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों की मगफिरत कर दे, जहन्नम से बचा ले। जब तक जिए ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख मेरे मौला। जब खातिमा आए अल्लाह ईमान की हालत में, ऐ अल्लाह मुसलमान होने की हालत में, रोजे की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में अल्लाह कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मरते वक्त कल जबान पर कलमा शहादत नसीब फरमा। खातिमा बिल खैर अता फरमा, हुस्ने खातिमा नसीब फरमा। हमारी जिंदगियों से तू राजी हो जा मेरे मौला। हमारे मौत के वक्त भी हमारी मौत से तू राजी रहना मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह हम तमाम को जिल्लत की जिंदगी से बचा ले, इज्जत की जिंदगी नसीब फरमा, अमन और सुकून की जिंदगी नसीब फरमा। हमारे आने वाले छोटे छोटे बच्चों को नेक नमाजी मुत्तकी परहेजगार बना। ऐ अल्लाह आने वाले हिंदुस्तान के हालात मुसलमानों के लिए खैर के फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इस्लाम के दुश्मनों से बचा ले मेरे मौला। इस्लाम के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद कर दे मेरे मौला। या तो उनको हिदायत दे या तो उनको गारत कर दे मेरे मौला। दज्जाल के फितने से बचा ले, जिंदगी के ऐ अल्लाह फितनों से बचा ले, माल के फितने से बचा ले, औरतों के फितने से बचा ले। ऐ अल्लाह हम तमाम को दुनिया के हर हादसात से बचा ले, अचानक आने वाली मौत से बचा ले, बड़ी बुरी बीमारियों से बचा ले। ऐ अल्लाह बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, एड्स जैसी बीमारियां, ऐ अल्लाह टीबी जैसी बीमारियां, ऐ अल्लाह बड़ी बुरी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को हुस्ने खातिमा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब खबर में जाए, ऐ अल्लाह मुनकिर व नकीर के सवाल के जवाब तेरी कुदरत कामिला से हमारी ज़बान से देने की तौफीक अता फरमा। हमारी खबरों में हद निगाह तक खबरों को कुशादा करते हुए जन्नत की खिड़की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जब क़यामत से उठें तो नेकोकारों में हमारा शुमार फरमा। दाएं हाथ में नाम अमाल नसीब फरमा। तेरे अर्श का साया नसीब फरमा मेरे मौला। अल्लाह तेरे नबी की शिफात कुबरा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तेरे एहसान अजीम से तेरे नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह पुल सिरात के ऊपर से आसानी से हमको गुजार दे मेरे मौला। पुल सिरात पार करना आसान बना दे अल्लाह। ऐ अल्लाह जन्नत में जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस में तेरा दीदार नसीब फरमा। अल्लाह तेरा दीदार हमें नसीब फरमा। हमारे दुआओं को कबूल फरमा। हमारे मर्दो अवा खवातीन बूढ़े बच्चे सब यहाँ जमा हैं, सबके लिए अल्लाह तू गुनाहों की मगफिरत फरमा दे, सब पर जन्नत वाजिब करके जहन्नम हराम कर दे। आज इस मैदान में हम जमा हुए हैं, अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा। ऐसी ईदें, ऐसे माह रमजान हमारी जिंदगी में बार बार नसीब फरमा। जो इबादतें रमजान में हमने की हैं अल्लाह उन इबादतों को कबूल फरमा, उन दुआओं को कबूल फरमा। हमारे नमाज रोजे तरावियों को कबूल फरमा। रियाकारी से बचा ले मेरे मौला। इखलास लिल्लाहियत नसीब फरमा। रब अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्नका नशहदु अन्नका अंत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।